everyone. Namaste. Today our Free Academy expert session for SSC, that is the Staff Selection Commission, for IMD examination for the profile that is organized by the assistant scientific assistant in IMD. So today our guest member, an expert member available, Mr. Akshay Kumar. Right now, myself, Mr. Ajay Kumar, I am basically a senior engineer and a technical expert in the core engineering and also founder of Free Academy. So now we welcome Mr. Akshay Kumar. Hi, sir. Thanks, Ajay, Yeah. for inviting me Yeah. to your session. Yeah. I'm very glad that I am here. Okay. Yeah, so I would like to request you, please brief your introduction. Whatever you done in your previous academic and the previous jobs. Yes. Okay. Hi everyone. Yeah. I am Akshay Kumar and I am from Asansol, West Bengal. I have done my schooling from nearby school Saraswati Vidya Mandir, Yeah. 12, and Yeah. after that I cracked WBJE. From there I got Haldia Institute of Technology, which is in Purba Midnapur district in West Bengal. So from there I have done BTech in Electronics and Communication Engineering. And after completing my BTech, I done a core job in Bangalore. Yeah. So with that, I for the career appointment, I changed my career towards the government job, and this is presently I'm working in a India Meteorological Department, Ministry of Sciences, as a scientific assistant. Yeah, thanks. This is the grades available. Now we can discuss the other parts. That is the introduction of the IMD. आप IMD के बारे में कुछ बताइए जिससे कि further we can move for the next segment of the entire session. Whatever we today discuss. So please brief about little bit for the IMD. So IMD, India Meteorological Department, भारत मौसम विज्ञान विभाग. ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे. तो ये डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है. तो इसका मेन कार्य था जैसे कि पृथ्वी के इर्द गिर्द जो मापदंड होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, सिस्मिक वेव हो गया, ये सब की स्टडी यहाँ पे स्टडी प्लस मेजरमेंट यहाँ पे नापदंड होता है. ठीक है. तो ये डिपार्टमेंट पहले अंग्रेजों के अंदर पे था. आफ्टर 1947 ये डिपार्टमेंट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर वो ले लिया गया. तो इसके अंदर फिर बहुत सारे भारत के हर स्टेट कैपिटल में इसके ऑफिसेस हैं. और इस पे बहुत सारे भारत में ऑब्जर्वेटरी भी है. ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि वहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं. किसके ऑब्जर्वेशन लेते हैं? टेम्परेचर के, प्रेशर के, रेन वर्षा का, मतलब इंटायर पैरामीटर ऑफ द एनवायरनमेंट. हाँ, वो सब लिया जाता है. तो भारत में बहुत सारे स्टेशन है. वहां से डाटा हमारा कलेक्ट होता है, ट्रेड होकर के उसका एनालिसिस होता है, फिर मॉडल बनते हैं उस पर बहुत प्रकार की. उसमें फिर पीएचडी जो करते हैं उसमें हम लोग ये डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डेटा को यूज में लाके उसमें रिसर्च करना चाहते हैं. डेफिनेटली. मतलब जैसे कि जो भी हमारी अलर्ट जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the different region with respect to environmental parameter. So that is the entire by the IMD, Indian Meteorological Department. Okay. That's the grades. Yeah. ये मतलब कि recognized body of भाषा के अंदर. हाँ, तो उसके अंदर ये. Okay. So that's the grades. And now we can discuss the entire process of the selection. Like कि अगर कोई भी एस्पिरेंट्स अगर प्रिपरेशन कर रहा है लाइक फॉर द आईएमडी के अंदर, तो आईएमडी से रिलेटेड जो एग्जाम कंडक्ट करती है बाय द कंडक्टिंग बॉडी दैट इज द एसएससी, तो एग्जाम कैसा कंडक्ट होता है, वे ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, वी कैन डिस्कस नाउ. Okay. Yeah. So if I talk about the selection process, so this examination conducted by SSC under for IMD. IMD has given some notification that SSC will conduct its examination. So SSC in SSC, so there is two paper. Paper 1 and paper 2. That is basically examination pattern. So examination paper 1 contains of
like SSC CGL. Yeah. It is same like that. Yeah. Means 100% will be there. Okay. Each 25 section, 4 section, Okay. reasoning, English, maths, Yeah. and aptitude. Yeah. Like Yeah, definitely. That's the ये एक ऑर्गेनाइज वे में है कि आप पेपर को प्रॉपर वे में सबमिट कर सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, ये एग्जामिनेशन में बेसिकली सिलेबस जो स्ट्रक्चर मतलब एस्पिरेंट्स सिलेबस स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल करेगा एग्जैक्टली इसमें सिलेबस जो होती है मेजर कंसर्न है वो एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन होता है सिलेबस से रिलेटेड. आपने ऐसे कहा या इनमें पैटर्न के साथ साथ मतलब कि प्रैक्टिस भी चाहिए तो पैटर्न अगर मिलने पे हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना किस पैटर्न का करने से हमको ज्यादा सहायता मिलेगी. तो जैसे मैं डिस्कस करता हूँ जैसे पहला जो पेपर था हमारा जैसे मैंने कहा उसमें इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड जीके ये 4 से 25 नंबर के होते हैं पेपर 1 के अंदर. इस पे हमें सीजीएल में जो प्रिपरेशन करते हैं वही प्रिपरेशन हमें यहाँ भी रखना है. ठीक है. उसके बाद फिर जो पेपर 2 है वो है होता है स्पेसिफिक पेपर. स्पेसिफिक पेपर मतलब कि वहाँ पे 3 पेपर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स. इन तीनों के जो ओनर जो करते हैं जो स्पेसिफिक जो पढ़ाई करते हैं सर मैंने इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो की है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसी का पेपर दिया. आगे जो कंप्यूटर का जो करेंगे वो कंप्यूटर का देंगे जो फिजिक्स करेंगे तो वो फिजिक्स का हो जाएगा. मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द एकेडमिक जो भी आपने कंप्लीशन किया है उस एकेडमिक से आपकी स्पेशलाइजेशन पेपर में. तो अभी तो इन्होंने सिर्फ 3 ही स्पेशलाइजेशन को कंसिडर किया है. बाकी अदर कंसिडरेशन वो नहीं करेंगे. इन फ्यूचर में भी अगर वो उसको अगर एक्सपांड करना चाहते हैं तो वो केमिस्ट्री को इंक्लूड कर सकते हैं और भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं. So definitely that entire specialization paper with respect to requirement of the IMT. कि IMT को क्या रिक्वायरमेंट है IMT जो भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर के ऊपर वर्क कर रही है जो भी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की है एक्चुअली अभी जो पेपर में स्पेशलाइजेशन उन्होंने ऑप्शन दिया है उसी बैकग्राउंड से रिलेटेड उन्होंने रखा है. जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का लेने क्या था कि कंप्यूटर में डेटा एनालिसिस कर पाएंगे तो डेटा जब हम लोग जो करते हैं पूरे भारत के हर क्षेत्रों से उस पे हम लोग डेटा का काम होगा तो कंप्यूटर वाले कर सकेंगे बेहतर कर सकेंगे. ओके मतलब दैट्स द ग्रेट दैट इज बेसिकली इन दैट द स्पेशलाइजेशन सिनेरियो लाइक हम अगर आपको इनरोल कर रहे हैं तो यू आर स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्टिव डोमेन सो दिस इज द ग्रेट फॉर द एंटायर वर्क इम्पैक्ट. तो एक वर्क में एक बेटर इम्पैक्ट आ पाएंगे और बेटर लाइक एनालिसिस हो पाएंगे. दैट्स द ग्रेट सिनेरियो. और जो एक बार मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर जो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम होता है. जैसे मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट लगे होते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम आ गया. डेफिनेटली. फिर फिजिक्स के क्यों फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ते हैं उनका भी यहाँ पे काम आता है. फिजिक्स में हम लोग जो फिजिकल फंडामेंटल वो पढ़ते हैं तो इसीलिए उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है. तो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक अगर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली उसमें आपने क्या फॉलो किया और आपने क्या मेंटेन किया लाइक द स्टडी मटेरियल लाइक बुकलेट आपने क्या फॉलो किया समथिंग लाइक द स्पेशलाइजेशन फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन IMT का पेपर जो कंडक्ट हो रही है SSC के द्वारा इसके लिए आप जो भी बुकलेट को फॉलो किया या स्टडी मटेरियल लाइक द समथिंग PYQ दैट इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आपने किन चीज को फॉलो किया और आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जो होगी वो स्टडी मटेरियल क्या होनी चाहिए. तो ये जो IMT का जो पेपर है ये हर 5 सालों में आता है. अभी जो मतलब 5 सालों में किया गया है क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट 5 सालों में ही क्रिएट होती है हर साल का ये रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. अगर हम इसकी बात करें स्टडी मटेरियल की तो जैसे स्टडी आपको क्या पढ़ना है आपने जैसे मैंने पहले बताया कि सीजीएल में आप जो पढ़ते हैं आपको सेम पेपर 1 के लिए वही पढ़ना है. सेम वही पढ़ना उससे कोई डिफरेंस नहीं है वही आएगा पेपर 1. पेपर 2 आपका स्पेसिफिक है जैसा मैंने किसी से बात किया अभी पेपर 2 में स्पेसिफिक रहेगा उस वहां से हटके कुछ नहीं रहेगा. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स किए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर ही रहेगा कंप्यूटर के तो कंप्यूटर का रहेगा फिजिक्स किए ना फिजिक्स का रहेगा. लेकिन इन सभी का पेपर का क्वालिटी मेंटेन किया गया है. मतलब क्वेश्चन मीडियम टू हाई ऐसा आप एक बार में देख के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आपने उसको प्रैक्टिस ना किया होगा पहले कभी.
ऐसा नहीं कि आप एक बार देखो कर देते हो, वो गलती नहीं होनी चाहिए। Okay. आपको पहले से ही पढ़ना ही पड़ेगा इस विषय के ऊपर। Yeah. Basically, इसकी लेबल ऑफ एनालिटिकल इसलिए भी रखा गया है क्योंकि बेसिकली यू ऑल गाइस बिलोंग फ्रॉम द लाइक साइंस बैकग्राउंड. So science is not just like the direct way something that is the basis of the conceptual. तो बेसिकली आप किस कंसेप्ट से स्टडी कर रहे हैं, किस कंसेप्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस कंसेप्ट की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड फॉर द क्रैकिंग द लाइक द पेपर ऑफ द क्वेश्चंस, राइट ना? Okay, okay. And now we can discuss like this. Here we can discuss about the like study material that is enough for the whatever you previous study for like the graduation में जो भी आपने पेपर को study किया है. Like if you are belong from the ECL, someone belong from the computer science, and someone belong from the science history, that is the physics and other subjects. So that's the booklet is the sufficient for this examination preparation. Yes, it is sufficient, and the practice is more important. If you read something and may not be, it will be remembered for up to the exam. Yeah. आपका जब एग्जाम जब भी होगा आपको याद नहीं रहेगा, आपको साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट्स अगर आप सीजन के प्रैक्टिस सेट उठा लो, उसके प्रैक्टिस सेट करो पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए आपको अपने शरीर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसकी ज्यादा प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं है। और नहीं है क्योंकि वो पेपर ही आपको 10 साल में 2 बार होता है। 2 बार होता है तो 2 पेपर आपको मिलेंगे ना वो करने के लिए। लेकिन सीजीएल का करोगे तो पेपर 1 आपका निकल आएगा। पेपर 2 के लिए आपको खुद की मेहनत वो करनी पड़ेगी और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंस। वो होने के बाद आप मतलब कि कुछ से भी आंसर वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं ये आंसर होनी चाहिए। ओके ओके, दैट इज द एंटायर सिनेरियो फॉर द व्हाटएवर आपकी फंडामेंटल किस लेवल पर क्लियर है, आपने जो भी स्टडी किया है लाइक द प्रीवियस वो कितने बेटर वे में आपने कंसेप्चुअल क्लियर किया है, दैट्स द वे टू क्रैक द एंटायर द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन. Yeah, that's the fine. Now we can discuss about the entire preparation strategy. Exactly इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? लाइक आपने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया वो किस वे में आपने प्लान किया था? That is the major and मतलब better important concern for the कोई भी aspirants या students के लिए. So please discuss about the preparation strategy. हाँ, जैसा दीदी ने कहा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बच्चों को कैसे रहना चाहिए। तो मैं अभी अपना बताता हूँ तो मैं कैसे करता था। तो आफ्टर ग्रेजुएशन तो मैंने तो वो जॉब कर रहा था मैं। तो मेरा दिन में काम मैं ऑफिस जाता था, फिर उधर से आकर फिर 2 घंटे 3 घंटे लगातार में डेली दिया करता था। इट्स ग्रेट कि आपने जॉब के साथ इसको प्लान किया, प्रिपरेशन किया। दैट इज द वेरी चैलेंजिंग एंड दैट इज द वेरी मोटिवेशनल वे। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ये करना पड़ेगा। आपके पास में 24 घंटे, हमारे पास में 24 घंटे। मैं उसमें 8 घंटा ऑफिस करके फिर 2 घंटे ट्रैफिक में लेकर 2 घंटे खाना और अपने काम करके कपड़े धोकर सब खुद ही करना पड़ेगा। जब मैं पीछे में रहता था फिर वहाँ पे फिर मैं टाइम निकाल के 2-3 घंटे पढ़ लिया करता था। तो ये कंसिस्टेंसी का पार्ट होगा। अगर आपका डेली कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आपको क्या कंसिस्टेंट हो जाओगे। धीरे धीरे वो ग्राफ आपको उगता जाएगा तो आपका जो समझने की क्षमता है उस मतलब कि आपको जो कर रहे हो आप ज्यादा कुछ कवर कर पाओगे। आपको लगे कि एग्जाम कर रहे आज पढ़ तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर एग्जाम से 6-7 महीना पहले ही कंसिस्टेंस वो आपको लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी आपको कंटिन्यूअस मेंटेन करना पड़ेगा, नॉट फॉर द विद इन अ डे, नॉट फॉर द विद इन अ मंथ। हाँ, आपको ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको डेली आपको वो प्रैक्टिस सेट आपको पहले आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट कितने मार्क्स आ रहे हैं और कंपेयर करके आपने कहाँ पे गलती किया है, आपने आंसर से जो मिला है उस वहाँ पे कितना जो गलती आपको देखो क्यों गलती हुआ है, उसको भी दोबारा फिर कुछ दिन बाद फिर उसको रिपीटेशन में करो। आपको ये रिपीटेशन मोड में करना है। मतलब एक कंटिन्यूटी अगर हमने प्लान किया है तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। व्हाटएवर योर डेली रूटीन में आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टडी रूटीन वो हमेशा हमको मेंटेन करना है इंटायर द इयर्स ऑफ द प्रिपरेशन। हाँ, जब तक आपका पेपर ना निकले तब तक आपको करना है किसी एग्जाम के लिए। पर्टिकुलरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम, यू कैन गो फॉर एनी एग्जाम, सो यू हैव टू मेंटेन योर कंटिन्यूटी ईच एंड एवरी डे। दैट्स द ग्रेट। And now we can discuss about the like the test series and something for the practices.
क्या आपने किसी टेस्ट सीरीज के साथ प्रिपरेशन को परस्यूट किया था या लाइक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कंडक्ट किया था? व्हाट इज द योर लाइक मेथोडोलॉजी फॉर द लाइक द क्वेश्चन प्रैक्टिस? हाँ, मेरा भी ये कहना है कि जब भी आप कोई भी जब जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो जब भी मेरा भी सोचना था कि अगर मैं किसी एग्जाम को दे रहा हूँ तो मुझे ये देना है, तो उसके पहले उसके बारे में जानना है कि वो क्या है। ठीक है, फिर उसका मैं 2-3 पेपर देख लिया कि वो क्या है। ओके, तो उससे क्या मुझे पता चला कि हाँ, इस टाइप के यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अगर एक पेपर देखा, तो एक पेपर हल्की क्लैरिटी है, दूसरा पेपर देखा, वहाँ भी हल्की क्लैरिटी, ये भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हूँ। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने 2-3 पेपर देखा था कि हाँ, ऐसा ऐसा होता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने फिर दूसरे एग्जाम के भी पेपर, जैसे अगर हमें पेपर नहीं मिलता तो फिर मैंने कहीं दूसरे एग्जाम का निकाल कर फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करके, सिलेबस तो सेम नहीं होता है, सिलेबस एंड सीजन की जो प्रिपरेशन जो थी, जो मैं कर रहा था, तो उसमें मेरे रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, जीके, ये सब क्लियर हुआ। मतलब जो भी कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट्स थी फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ द एसएससी, दैट इज द वेरी सपोर्टिव फॉर यू कि आपने उस पेपर के लिए कंडक्ट कर रहे थे आईसीडीएस के लिए, और सेम टाइम में आप इसकी पेपर 1 का सारे प्रिपरेशन को जस्ट एक्सेल कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उस फंडामेंटल को क्लियर रखा। ये फंडामेंटल क्लियर, जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका बेस बनाता है। डेफिनेटली। And now we can discuss कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, because here the two paper. Paper one that basically contain the general scenario like the mathematics, reasoning, and other subjects. And paper two that is the specialization, whatever your previous academic domain. तो आपने टाइम की भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, लाइक वो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन एक बैलेंस स्ट्रक्चर में कैसे बनाया आपने कि लाइक कि हमें पेपर 1 के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को हमें इतने टाइम अलॉट करना है, इतने टाइम हमें प्रैक्टिस के लिए अलॉट करना है, इतने टाइम हमें टेस्ट देना है, लाइक इसकी स्ट्रक्चर बैलेंस कैसे हमें? यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस का भी पार्ट आता है, क्योंकि अगर आप पेपर आपने किया है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 की, एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको सबसे कम समय किस में लग रहा है। ओके, आप अगर समझते हैं इंग्लिश में कम समय लग रहा है, तो आप इंग्लिश को टारगेट करो, इंग्लिश पहले कमिट कर लो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आए। मतलब यहाँ पर ये भी चीज एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी कोई भी पार्ट स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो वो आपको काफी इस पेपर को प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। हाँ, उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है, आपने उसे भी स्टार्ट कर दिया पहले करने के लिए, तो उसे आपको कवर करने में टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो आपको लगेगा कि मेरे 3 सब्जेक्ट अभी और बाकी है, राइट, बाकी है, आपका पेपर 2 भी बाकी है, तो आपने मैथ ज्यादा एप्टीट्यूड में भी टाइम दे दिया, और 3 सब्जेक्ट 3 पेपर 3 जो सेक्शन है वो बनिंग टाइम, तो इससे आपको मोटिवेशन डाउन होगा। इसीलिए आप पहले इजी सब्जेक्ट्स को पहले किया कीजिए। ओके, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब इजी होंगे, फिर आप मैथ्स कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो अब जाता रहेगा समय के बाद। उसके बाद फिर आपने जो ऑनर्स पेपर जो किया है ग्रेजुएशन में, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसा ही मतलब कि किया जाता है, इजी टू हार्ड। ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई है, तो इससे मुझे काफी बेनिफिट। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि लाइक आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको वहां पर अपने स्ट्रेंथ भी फाइंड करना होता है, लाइक हियर द मल्टीपल सब्जेक्ट्स फॉर द इंटायर पेपर क्राइटेरिया, तो आपको अपना कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट जहां आपकी बेटर स्ट्रेंथ है। अगर उस पेपर का फंडामेंटल आपके लिए क्लियर है, देन डेफिनेटली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द टाइम इन प्रॉपर एंड बैलेंस मैनर। So need to find like strength of the subjects. आपको एक बेटर स्ट्रेंथ चाहिए कि आपकी फंडामेंटल अगर होती है तो अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर आप बेटर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। Yeah, that's the fine. Now we can discuss about the basically a major and important concern of the aspirants, that is the motivational source during the preparation of the examination. जब भी आप preparation of the examination conduct कर रहे होते थे, लाइक उस कंडीशन में आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, लाइक आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखा ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? देखिए दीदी, मैंने तो जॉब के साथ एक पसंद किया है, तो इस पे चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऑफिस वर्क भी है, घर पे जाके खुद का काम भी करना है, उसके बाद भी पढ़ना भी है,
तो ऐसा क्या था कि मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग थे जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। Okay. तो उन सबका एग्जाम निकल Yeah. रहा था। Yeah. मेरा पीछे निकला, काफी पीछे निकला। Okay. वैसा मतलब कि Yeah. में नहीं। हाँ, तो Definitely. सभी प्रिपरेशन निकल रहा था। Yeah. तो मुझे उनसे मोटिवेशन प्राप्त हुआ क्योंकि वो लोग मेरे साथ ही पढ़े थे कॉलेज Definitely. में। अगर वो कर सकते हो हम भी कर सकते हाँ, हैं। ऐसा मोटिवेशन था कि Yeah. वो अगर कर सकते हो क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ। Definitely. उसने तो मेरे साथ ही पढ़ाई की। Yeah. सर, तो कर सकूं। Yeah. तो उनको देख के ही मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मैंने जॉब के साथ ये स्टार्ट कर दिया। Okay. हाँ, तो ये सबसे मोटिवेशन बड़ा आप motivation है। मोटिवेशन के लिए आपको 100 क्रॉस 2 दिन जाना पड़ेगा। Yeah. आपके आसपास में मोटिवेशन अवेलेबल होते हैं, Definitely. क्योंकि आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। Yeah. क्योंकि वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। Yeah. Definitely, basically कि आपकी एम और ड्रीम और मोटिव क्या है, आप उसी पॉइंट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करना है। Yeah, like if you able to crack this examination, then you get the entire features and benefits of the entire service like this. So this is the major and basically important motivational source for during the preparation like this. Yeah, that's a great. That's the very challenging for you. Definitely you cracks already. And now we can discuss about the advantage of the feature and advantage of the IMD during the service of the job. आप IMD के अंदर अगर सर्विस कर रहे हैं या कोई भी सिलेक्टेड होके अगर सर्विस करते हैं तो लाइक यहाँ पर उनकी एडवांटेज क्या मिलने वाले हैं, लाइक IMD का फीचर या सर्विस में जो भी एक पॉजिटिविटी है, लाइक हाउ यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आईएमडी के ऊपर लाइट देना चाहूंगा। Yeah. आईएमडी उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट होगा, उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगा Yeah. जो कि साइंस में रुचि रखते हैं। Yeah, that's a great. साइंस में रुचि रखने वालों Yeah. के लिए ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मैं मानता हूँ, भारत सरकार के अंदर है। Yeah. और भी डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको, जैसे कि आपको जैसे मैंने कहा Yeah. कि आप स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट में होंगे उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट मिलती है। पोस्ट मिलती है। हाँ। That is basically job हाँ। profile. जॉब प्रोफाइल। Yeah. तो मतलब कि आपने जिसने पढ़ा किया आपको Yeah. उस दुनिया पे जॉब मिल रहा है, तो ये उससे बढ़िया बात क्या होगी। Yeah. Yeah. कितने लोग करते हैं जॉब किसी स्ट्रीम में करते हैं, Yeah. जॉब पे उसको पढ़ते किसी और में, जॉब किसी और में करते Yeah. हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। आप अगर उस सब्जेक्ट के प्रति आपका लगाव है तो Yeah. आपको यहाँ पे वो काम ऐसा मतलब आपकी बैकग्राउंड एक इंटरेस्ट हाँ। और एकेडमिक स्पेशलाइजेशन, that is the play a better and impactful role between the your service. हाँ। So this is the very interesting. हाँ। Yeah. एडवांटेज आईटी का क्या है Yeah. कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल रही है। Yeah. ठीक है। Yeah. बाकी वर्क प्रोफाइल भी यहाँ पे काफी बेहतर है। Okay. जैसे कि आपको जिस पोस्ट पे यहाँ पे जैसा साइंटिफिक से तो मैं यहाँ पे नियुक्त हूँ, Yeah. तो यह है वैली सो ग्रेट पे का। Great pay. मतलब here the great pay scenario of the government of India. हाँ, 4200 का यहाँ पे डेट पे है असिस्टेंट के लिए। Okay. यहाँ पे स्कोप भी है आगे बढ़ने का भी। अगर आप आगे इससे फर्दर इंटरव्यूज अगर देते हैं, अगर Yeah. आपका पीएचडी कंप्लीट होता है तो Okay. उसके बाद आपको डायरेक्टली साइंटिस्ट के पोस्ट में आपको लिया Yeah. जा सकता है। मतलब आने वाले टाइम में जैसे आप अपग्रेड होते हैं प्रोफाइल में तो आप साइंटिस्ट प्रोफाइल पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी किया होगा, पेपर Yeah. लिखा होगा, Yeah. आपका पेपर सिलेक्ट हुआ होगा, तो उसके Yeah. अकॉर्डिंग पे आप यहाँ पे अपने करियर को अभी जोड़ दे सकते हैं। Yeah. और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपको जनरल इस पे प्रमोशंस भी होते हैं। Yeah. 5 सालों में कहा गया, मतलब कि वो पेपर है, Yeah. पेपर क्लियर करने के बाद 5 सालों Yeah. में प्रमोशन So that is basically promotion within the internal examination of the within a department. वो एक ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग पास हो गया, ट्रेनिंग Yeah. का एग्जाम होता है, ट्रेनिंग Yeah. के बाद एक पेपर होगा, वो पेपर पास करोगे तो फिर वो प्रमोशन Yeah, that's the very मतलब impactful scenario because आप जो वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही आगे का आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होगी और आप उस पेपर को इजीली आप क्वालिफाइड करके आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर दिस इज अ वेरी टू एंड फेयर प्रोसेस और इससे ऐसा होता है कि आपकी हमेशा एक मोटिवेशन फॉर द चैलेंज, लेकिन आप अगर अपग्रेड होना चाहते हैं, यस दिस इज द रिक्वायर्ड और दिस इज द बेटर इम्पैक्ट फॉर द इंटायर डिपार्टमेंट। Yeah, that's the very great initiative of the IMD for the internal promotion with respect to analysis of your knowledge and skills. And now we can discuss also कि someone if available in the IMD, तो IMD के अंदर रहते हुए वो अपने फ्यूचर एक्सप्लोरेशन विद इन IMD कैसे कर सकता है?
क्या उसको बाहर की अपॉर्चुनिटी है फॉर द लाइक द फॉरेन ट्रेड लाइक द इंटरनल लाइक द ट्रांसपोर्ट सिनेरियो विद इन इंडिया लाइक और व्हाटएवर मतलब एक्सप्लोरेशन कैसे अपने आप को कर सकते हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ अभी, Yeah. जिस डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर सेक्शन में हूँ, हैं? तो मुझे ऑल इंडिया टूर का कभी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। Okay. जैसे मैं अगर कहीं डिपार्टमेंट हुआ, कहीं पे Yeah. जाना है, Yeah. तो ऑफिस टूर में मैं जाया करता हूँ। Yeah, और definitely. हमारे यहाँ से एमपी का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं ये बोलता हूँ Yeah. कि आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंटार्कटिका जाने की। Okay, so that's the very great and Antarctica glad का- scenario. आपको वहाँ पे जाके रिसर्च करना है। Yeah. वहाँ पे हमारा 2 स्टेशन है, Yeah. भारती और मैत्री। Yeah. So in that the weather analysis, environmental analysis, and that the research analog, everything you can pursue. जो लोगों को एक्सप्लोर करना है, Yeah. तो अंटार्कटिका से बढ़िया और क्या जगह? क्या हो सकता है? Yeah, definitely. That's a great place. That is the too much. तो वहाँ पे हम लोग को एक ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद अगर Yeah. आप फिट हो फिजिकल फिट, Yeah. तो आपको वहाँ पे विद प्रॉपर ट्रेनिंग की आपको वहाँ पे करना है, कैसे Yeah. आगे प्रोसीड करना है। Yeah. वहाँ का वातावरण बहुत ही -40 -50 पे Yeah. आपको रहना है। तो पहले सिखाया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ पे आगे। ओके तो पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है दैट ट्रेनिंग विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोफाइल with respect to like the physical fitness and with respect to entire the medical scenario then you are able and capable to pursue that scope. वो बहुत ही टफ होता है। Yeah. अंटार्कटिका एक साइंस एंथुसियास्ट के लिए Yeah. अंटार्कटिका एक मतलब कि पृथ्वी में एक ऐसा जगह जहाँ कोई नहीं जाता, आपको Yeah. जाने को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। Definitely. आप वो सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। Yeah. तो एक क्रिटिकल एक चैलेंजिंग नेचर एक्सप्लोरेशन के लिए आपको विद इन डिपार्टमेंट में रहते हुए एक सुनहरा मौका दिया जाता है। मौका मिलेगा। Yeah. और कोई डिपार्टमेंट का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा जरूर Yeah. मिल जाएगा। अगर जो इतने एंथुसियास्ट है, Yeah. जो फैमिली से You dedicated. Yeah. जो 1.5 साल मतलब वहाँ पे टाइम पे होता है कि आपको 1.5 साल वहाँ पे रहना होगा। Yeah. Yeah. तो आपको अगर लगता है कि आप घर से दूर रह सकते हो, Yeah. Yeah. तो ये आप ट्राई कर सकते हो। Then definitely that's a great part of the like IMD. Right now we can discuss about the job culture of the IMD. IMD के अंदर अगर जॉब कल्चर की बात करें तो कैसा है लाइक दिस इज द लाइक टू मच क्रिएटिविटी एंड वट एवर समथिंग बैरियर क्या इस कल्चर में किसी तरह का बैरियर लिमिटेशन या किसी तरह की चीजें हैं या आप फ्री टू एक्सप्लोर द एंटायर रिसर्च एनालिसिस with respect to respective parameter of the environment. जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। Yeah. तो इसके अंतर्गत बहुत सारे काम आपको मतलब मिलेंगे, करने के लिए Yeah. मिलेंगे। Yeah. आप अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है, Yeah. तो आप वो काम को ले भी सकते हैं। Yeah, definitely. अगर आप जो काम मिला है, आपको Yeah. वो भी कर रहे हो, Yeah. अगर उसमें आपको टाइम बच जाता है, तो आप Yeah. एक्स्ट्रा कुछ मतलब कि यहाँ पे डिपार्टमेंट रिलेटेड आप कर सकते हो। कर सकते जैसे कि कितने लोगों ने डेटा एनालिसिस का भी बात किया, Yeah. इसमें बात किया। Yeah. डेटा एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज Yeah. है। क्योंकि पूरा इंटायर पैरामीटर को डाटा के बेस पर आप ये चीजें रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो ऐसा क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। Yeah, definitely. हाँ, तो आप इसमें स्कोप बहुत है। Yeah. आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। Yeah. आप अपने खुद को आप जो नॉलेज है आपने जो Yeah. गैदर किया बहुत सालों से, Yeah. यहाँ पे आपको वो निखारने का मौका मिलेगा। Yeah, definitely. यहाँ पे Basically, ये real time data होती है whatever the going on the environmental parameter. Yeah. अभी जो टाइम है इसके Yeah. पीछे का सारा डाटा आपके पास हो रहेगा। वो हो रहेगा। Yeah, that's the great कि हम आने वाले टाइम को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। What is the our planning for the coming weather and nature whatever. Yeah, that's a great part. Now we can also discuss about a little bit brief like the job or work profile. Exactly आपको जो प्रोफाइल मिली है that is the scientific assistant. तो बेसिकली इसके अंडर में कितने सारे वर्क कंडक्ट होती है लाइक यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ वर्क तो बहुत है। Yeah. जिसमें मुझे रखा गया है Yeah. वो है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। Yeah. ठीक है, वहाँ पे Yeah. इक्विपमेंट्स का Yeah. वो वहाँ पे बनते हैं। Yeah. कुछ बनते हैं, Yeah. बनते हैं, उसको टेस्टिंग होता है, आप वो लोग हम उसका काम करते हैं। That is the वो instrument- critical part. वो इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, Yeah. विदाउट इंस्ट्रूमेंट यू कांट एबल टू टेक Yeah. डेटा प्रॉपर डेटा। Okay. इंस्ट्रूमेंट इज गुड टेस्टेड प्रॉपर Yeah. फाइन, Yeah. then it is ready to take data. Yeah. So in the and
I'm also highlight about other section like there is weather forecasting department. Yeah. Weather forecasting section also there. Okay. Agromet, agriculture related. Yeah. Is what type of crops you want to is which crop is suitable for which type of weather. Yeah. That type of also. ये काफी एक मेजर कंसर्न है कि लाइक अगर समथिंग अगर इंडिया की बात करें तो एक मेजर सेक्टर एंड सेगमेंट दैट इज द एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर को प्रॉपर कंडक्ट और प्रॉपर प्लानिंग में कैसे हम उस सेक्शन में डेवलप कर रहे हैं, इसमें भी एक मेजर रोल प्लेयर दैट इज आई। हाँ, मेजर प्लेयर है। ओके, हमारे यहाँ पे सीनियर पे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके ओके। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत देखिए एक्शन लेते हैं कि हाँ चलो आपको वो समझाएंगे कि हाँ अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा वो लोग भी हेल्प करते हैं। तो दैट इज बेसिकली ए गुड कल्चर, डेफिनेटली। तो ड्यूरिंग द वर्क आपको एक मेंटरशिप भी प्रोवाइड होता है फ्रॉम द हायर मेंबर्स दैट इज लाइक द साइंटिस्ट एंड द अपग्रेडेड साइंटिस्ट फॉर द डिफरेंट सिनेरियो। तो आपको कभी ये चीज फीलिंग नहीं आएगी कि यार हम इसको टैकल कैसे करें? All times senior and superior available for the like help and support your respective work. That's the great culture of the IMD. This is the very the helpful for the entire member of the IMD, whatever the workforce level. Now we can discuss a major concern that is the like that कोई भी person like someone pursued with the job. So how can proceed for the preparation of this examination with the job? अगर वो कहीं भी किसी भी जॉब के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो इस एग्जामिनेशन को कैसे बेसिकली वो प्रोसीड करें? उनकी मेजर कंसर्न होती है लाइक कि हम किस सब्जेक्ट को कैसे टेकल करेंगे, या अगर हम जॉब कर रहे हैं उस जॉब से हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं। अगर that guy also work in like the computers department and work in ECA department, तो वहाँ से वो अपने एडवांटेज लाइक स्पेशलाइजेशन में कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपने भी एक जॉब के साथ पूरी कंप्लीट किया था। देखिए जैसे मैंने कहा था कि विल भी होना चाहिए। आपका करने के साथ कुछ करने के साथ भी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए। अगर आप जॉब में जॉब भी आपको सही से करना है, जॉब में भी आपको ढेलापन नहीं दिखाना है कि जॉब छोड़ के मैं डायरेक्टली वो पढ़ाई करूँ इसकी, ऐसे नहीं। आपको जॉब सिंसियर रहना है, आपके जॉब में भी सिंसियर रहना है, घर में आके आप जो 2-3 घंटे जो पढ़ने की जरूरत है उसमें आपको सिंसियर रहना है। तो आपका जो ऑनेस्टी है आपकी जॉब के प्रति उस समय ऑनेस्टी रहेगी, फिर आपको पढ़ाई के साथ भी ऑनेस्टी रहेगी। तो आप इससे आप किसी को हेम्पर नहीं कर रहे हो, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसको भी सही कर रहे हो, फिर आने के बाद फिर आपने वो पढ़ाई भी कर रहे हो उसमें भी सिंसियर रहना है। तो आपके अंदर जो ऑनेस्टी ये जो दोनों जगह जो है ये आप जो ऑनेस्टी के कारण आप आगे जा सकते हैं, उसमें आपका भगवान भी आपको साथ देगा। बराबर, मतलब बेसिकली आप जहाँ भी जिस भी प्रोफाइल पर अलॉटेड है आप अपने वर्क को शिद्दत से कंप्लीट किए, देन डेफिनेटली यस आपको उससे भी हेल्प मिलेगा। मैं ऐसा कि क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने जॉब जहाँ पे आप कर रहे हो किसी भी सेक्टर पे कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे शिद्दत से नहीं करोगे आपको वर्क वहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगा। आप घर आओगे आपका मेंटल पीस नहीं रहेगा, आप उस अनमेंटल जो मेंटल पीस के साथ मेंटल पीस आपके पास नहीं, क्योंकि आपने जॉब आपको जो काम दिया गया था मैनेजर के थ्रू आपने वो कंप्लीट नहीं किया, आपने घर आकर के आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, तो आपको मैनेजर का जो आपने जो मैनेजर आपको जो काम दिया वो आपका माइंड में घूमता रहे, तो घूमने से क्या होगा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। दैट्स अ ग्रेट बेसिकली। तो इसीलिए आपको आपको जॉब अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब में भी मतलब कि बढ़िया से आपको ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहने के साथ आपको क्या होगा कि आप अंदर से संतुष्ट हो। अगर आप संतुष्ट हो 8 घंटे में अगर आप संतुष्ट हो ऑफिस से घर आ गए आप संतुष्ट हो रही आज का मैंने काम कर लिया अब मुझे और एक्स्ट्रा काम नहीं आएगा, तो आप उस मेंटल पीस के साथ आप पढ़ना प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग का शांत रहना बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। That's a great interactive session for the like basically SSC IMD preparation. So, students, if you have the respective other concern and like any need to guidance for the personalized segment, then definitely you can find us. Then definitely we can ready and capable able to respond and reply. और थैंक यू मिस्टर अक्षय जी जिन्होंने आपको इंटायर ब्रीफ किया फॉर द प्रिपरेशन गाइडेंस। और दिस इज आवर ग्रेट इनिशिएटिव बेसिकली फ्री एकेडमी एक्सपर्ट सेशन फॉर द इंटायर डोमेन ऑफ द प्रिपरेशन गाइडेंस।
तो इसमें हम लोग कंटिन्यूअस सेशन कंडक्ट करते रहते हैं और कमिंग टाइम में कंटिन्यूअस करेंगे और दिस सेशन बेसिकली इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द IMD एग्जामिनेशन. तो डेफिनेटली इन कमिंग वे और कमिंग डेज then definitely we can again connect for the different segment of the IMD. So that's the great. Thank you very much कि आपने as a expert session आपने available रहा for the aspirants guidance. Thanks very much. कैसे दीदी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए Yeah. मैं भी चाहता हूँ कि सभी लोग आपसे सीखें. Yeah. आपने जो इतना कुछ अभी तक किया है, Yeah. आपके कितने भी सेशंस हुए